करना चाहते हैं. So before inviting our guest, I would like to introduce her. She is very eminent and students, आप श्योर हैं कि आप समझ गए मैं आपसे क्या बात बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Okay, Yes, very ma'am. good. Yes, Very good. ma'am. Very good. Very good. Yes. So, students, our first speaker of the day is Madam Dr. Sunaina Swain. She has done her PG in psychology with specialization in health and counseling psychology. She has PhD in health communication. Madam is currently working as an assistant professor in Tata Institute of Social Science, Hyderabad campus. Her specialization is in health, gender, public policies, counseling, psychology, social psychology, research methodology, and statistics. So she has a long list of publications in national and international peer journals. And she has worked in several state government projects. The topic of today's webinar is very relevant, and I think Madam's speech will be a great speech. Students, please listen closely. All the audience, I would like to say to all of you that please listen closely. There will be an interaction session in between it will be go, and with my humble words, I would like to invite Dr. Swain to take the floor. Madam, over to you. Madam, please. Yeah. Thank you so much for such a warm welcome. And I'm sorry I was delayed initially. I was not able to connect to the link. I did not know what was happening. I'm more used to Zoom meetings actually. But yeah, without much further ado, I think we can start. So what I was hoping is, first of all, when I spoke to Dr. Sucheta, I was like, I can speak in Hindi also, but my Hindi is going to be very Hyderabadi Hindi because I have been based in Hyderabad since a long time. So pardon me if you find my Hindi to be problematic or something. No, but ma'am. I'll try to switch between English and Hindi. And Yeah. what I was hoping is, instead of me giving a kind of a lecture mode, the way I take my classes is more of interactive mode. And stress, mental health is something that we are all aware of what it is. But I think the self-awareness or more awareness about mental health comes from, asking questions about it. So I would suggest to all the students and the audience, if they have any questions, especially the students actually, if they have any questions from their own side, from their side, they can actually ask, unmute themselves and ask directly, or they can put the questions in the chat box and I'll try to answer. But before that starts, I'm hoping that this will be more of an interactive session rather than me giving a lecture, because I'm sure the students don't want a lecture in these difficult times. But before that interactive part begins, I was hoping to talk a little bit about why we are talking about stress or mental health in these times. So, mental health is something that we don't need to, it is a thing that always is there on our minds. It's not something that we have to specially talk about only in cases where there is, crisis going on. The fact is that mental health is something that one has to take care of all the time. ऐसा नहीं कि क्राइसिस है तो इसीलिए हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सोचना नहीं चाहिए. So mental health is something that one has to take care of, one has to talk about, one has to be aware of throughout our lifetime, right? So when it comes to mental health, the health definition of health as such is very, very comprehensive, which has been given by World Health Organization. And going by that definition, so one cannot be just physically healthy.
one has to be mentally healthy, spiritually healthy, psychologically healthy, emotionally healthy, socially healthy also. But what is happening in this time of crisis, the pandemic actually, uh, our world has been thrown into a kind of a confusion. पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूज मिल पढ़ रहे हैं लेकिन न्यूज भी इतनी बुरी बुरी आती है कि हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि ये क्राइसिस किस हद तक जा सकता है, किस हद तक हमें अफेक्ट कर सकता है। तो बात ये होती है कि जब क्राइसिस में हम लोग, किसी भी क्राइसिस में हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको कुछ सोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, तो most of the times our resources are engaged. Resources, when I say resources, resources like mental resources, physical resources, financial resources. जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग बात करते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ हम लोग लोन लेते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब हम लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं वो उसे हम लोग यूज करते हैं। Now stress in some instances can also be good, you know, so that good stress is called as eustress. आपने अगर सुना होगा यू स्ट्रेस वर्ड, एक डिस्ट्रेस है, एक यू स्ट्रेस है। तो यू स्ट्रेस अच्छी वाली स्ट्रेस होती है। जैसे एग्जाम से पहले हम लोग को टेंशन होता है कि कैसे एग्जाम लिखना है, क्या करेंगे, पढ़ना है, ग्रेड्स खराब हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, घर में क्या बोलेंगे, टीचर्स को क्या बोलेंगे। तो वो स्ट्रेस में आके हम लोग मोटिवेट होते हैं पढ़ाई करने के लिए, जो ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस अच्छा स्ट्रेस होता है। जब हमारे पास रिसोर्सेस होता है वो स्ट्रेस को मीट करने के लिए, वो स्ट्रेस को रिजॉल्व करने के लिए, तो वो स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा होता है ना। जब वो स्ट्रेस हमारे रिसोर्सेस के बाहर होते हैं, हम लोग उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते, हम लोग उससे कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है हम लोगों से, तो हम लोग वो स्ट्रेस हम लोग डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, वो स्ट्रेस खराब होता है ना। तो वो स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग के रिसोर्सेस के बाहर होता है, तो हम लोग का धीरे धीरे बर्नआउट होना शुरू होता है। हम लोग के पास, जैसे समझ लीजिए हम लोग के पास अगर 50 रुपए है टोटल, 50 रुपए में से आपको बहुत सारा खर्चा करना है, और वो खर्चे में से सब कुछ होने के बाद आपके पास 10 रुपए बच जाते हैं। तो आप वो सारे खर्चे को मैनेज करके आपके पास 10 रुपए बनते हैं, तो आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। तो इमेजिन अ सिनेरियो, जब आपके पास 50 रुपए है लेकिन आपका खर्चा 100 रुपए या 200 रुपए हो रहा है, तो आपको ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो वो डिस्ट्रेस वाले सिचुएशन में आ जाते हैं। नाउ ये कोविड-19 के टाइम में, इवन दो हम लोग को लगता है कि हम लोग घर में हैं या जैसे भी मैनेज कर रहे हैं, हम लोग मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेस, जो एक्यूट स्ट्रेस से शुरू हुआ था, अचानक से दुनिया बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया, हम लोग घर में रह गए, तो वो एक्यूट स्ट्रेस से हम लोग धीरे धीरे क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि कांस्टेंट रहता है, वो स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है। और क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, इसीलिए हम लोग, वो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगता है धीरे धीरे। एक बात ये भी है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोग मेंटली अफेक्ट हो रहे हैं। एक्चुअली मेंटल हेल्थ का वही एक क्या बोल सकते हैं, एक डाउन साइड है कि हमें लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से कोप कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ देर बाद पता चलता है, क्राइसिस के बाद पता चलता है कि अच्छा ये तो बहुत कुछ खराब हो गया। लेकिन अवेयरनेस जब नहीं रहता है तो हम लोग वो सिम्टम्स को या फिर वो इंडिकेटर्स को हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अच्छा ये सब रीजंस इसी वजह से हो रहा है। जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों में, स्पेशली एडोलेसेंस में, यंग बच्चों में ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे कि बहुत गुस्सा आ रहा है बिना रीजन के, टेम्पर टैंट्रम्स हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, एपिटाइट नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन, एंजाइटी है, और हेडेक हो रहा है, दुखी दुखी सा लग रहा है, कुछ चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब सोच रहे हैं कि क्या मतलब बनता है लाइफ का, क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, हमारे फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है, फैमिली के साथ क्या हो रहा है। और कभी, और मतलब इट इज अनफॉर्चुनेट दैट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खुद के फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ होगा ये कोविड-19 के दौरान। तो वो सबको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमें लगता है कि हम लोग अच्छा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट आपको शायद 2 महीने या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद भी पता चलेगा कि अच्छा कुछ हुआ था हमारे साथ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर स्टूडेंट्स, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, कंफ्यूजन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है रात को ठीक से, मम्मी पापा के साथ या घर वालों के साथ झगड़ा चल रहा है,
पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है, असाइनमेंट्स है, एग्जाम्स है, लेकिन वो मूड नहीं कर रहा है करने का, या फिर पता नहीं चल रहा है कि आगे का क्लासेस होंगे नहीं होंगे, डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी, एग्जाम्स कैसे होंगे, मार्क्स कैसे आएंगे, हम लोग या किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्लान भी होगा कि उनको आगे कुछ कहीं पे अप्लाई करना है, आगे पढ़ना है, जॉब के लिए जाना है, वो सब कंफ्यूजन रहता है। वो बहुत नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है ये, ऐसे फील करना ये टाइम पे बहुत नॉर्मल है। अगर आपको आप ऐसा फील कर रहे हो तो इस फीलिंग को दबाइए मत, उस फीलिंग को साइड मत कीजिए कि उसको हटा दीजिए माइंड से कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये अच्छी बात नहीं होगी, ये हेल्दी नहीं होगा। अगर आपको ये सब फीलिंग्स आ रही है, आपके मन में ये सब सवाल आ रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप अपने टीचर से या अपने साइकोलॉजिस्ट से, आपके कॉलेज के काउंसलर से जरूर बात कीजिए इसके बारे में। और ये मान के चलिए कि नॉर्मल होता है ऐसे फील करना, ये क्राइसिस टाइम में बहुत नॉर्मल होता है। जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने शायद 1 महीने तक न्यूज़पेपर देखा कि क्या हो रहा है, कहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। अभी जो आप पढ़ रहे होंगे वायलेंस के साथ लेके जो केसेस हो रहे, कल ही मैंने एक न्यूज बहुत दर्द भरी, बहुत हॉरिफाइंग न्यूज मैंने पढ़ी, जो स्टेशन में हुआ था, मुजफ्फरनगर स्टेशन में शायद। ये सब न्यूज भी हमें अफेक्ट करता है। और मीडिया का भी वो है कि वो लोग हाइप करके, ड्रामेटाइज करके बताते हैं। फैक्ट्स तो एक बात है, बताते ही हैं हमें, लेकिन मीडिया का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है कि हमें बहुत सारे न्यूज़ेस बहुत हाइप ड्रामेटिकली हमें बताया जाता है या दर्शाया जाता है। तो मैंने एक्चुअली न्यूज देखना बंद कर दिया, मैं सिर्फ नंबर्स देखती हूँ। कुछ दिनों तक ट्राई किया बंद करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो ये सब चीजें हमारे साथ मतलब एक एक मिक्सचर होके हम लोग के ऊपर इफेक्ट बन रहा है उसका। तो ये होता क्यों है लेकिन ऐसे? तो सब भेजा नहीं ग्रुप, हम लोग स्ट्रेस में इसीलिए आते हैं क्योंकि समवेयर हम लोग के पास जो रिसोर्सेस रहते हैं इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को डील करने के लिए या कोप करने के लिए उनके साथ, वो रिसोर्सेस हमारे से कम हो रहे हैं। तो वो रिसोर्सेस कैसे बनते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप समझ लीजिए एक बैंक है, ठीक है, आपके बैंक में अकाउंट है ना? तो बैंक में जब अकाउंट होता है तो आप उसमें पैसे डालते हो। ऐसा नहीं कि आप बैंक में जाओगे और बोलोगे कैशियर से कि हमें पैसा दे दो तो वो पैसे दे देंगे। तो हम लोग एक अकाउंट खोलते हैं, हम लोग का खाता रहता है, एक स्टेटमेंट रहता है, हम लोग एटीएम कार्ड मिलता है, हम लोग अकाउंट खोलते हैं। तो जब भी हमें, और हम लोग उसमें पैसे डिपॉजिट करते रहते हैं, तो जब भी हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम लोग बैंक में जाते हैं, वो एटीएम कार्ड यूज करते हैं या फिर बैंक में जाके वो चेक देते हैं या फिर एक फॉर्म भर्ती करते हैं और वो हमें पैसे देते हैं बैंक वाले। ना इमेजिन योर लाइफ कि आपके पास एक मेंटल हेल्थ का बैंक है, तो आप उसमें रिसोर्सेस डाल, आप उसमें पैसे डाल रहे हैं ना। इसमें पैसे की क्या बात है? आपकी जो रिलेशनशिप्स है, फ्रेंडशिप्स है, पार्टनर्स है, स्पाउसेस है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी है, सिबलिंग्स है, इनके सबके साथ जो आपका रिलेशनशिप है, आपको उससे वो एक रिसोर्स मिलता है। दूसरी बात है, आप लोग जो एक्टिविटीज करते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ नया सीखते हैं कॉलेज से, अपने टीचर से, एक दूसरे से, अपने पीयर ग्रुप से, या फिर अपने खुद से आप काम करते हैं, नेचर से, बहुत सारी चीजें आप सीखते रहते हैं जो पॉजिटिव होती है आपकी लाइफ के लिए, जिनसे आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जिनसे आपको लर्निंग्स मिलते हैं। तो आप वो सब रिसोर्सेस लेके आप अपने मेंटल हेल्थ के बैंक में जाके डाल देते हैं ना। ऐसे टाइम में जब हम लोग स्ट्रेस में हैं या एक क्राइसिस में चल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में वो एटीएम कार्ड यूज करते रहते हैं, उससे विड्रॉल बनाते रहते हैं, करते रहते हैं, उससे निकालते रहते हैं रिसोर्सेस। Now, over the time, since the lockdown has happened from March 24, हम लोग वो रिसोर्सेज बहुत यूज कर रहे हैं और स्ट्रेस हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि वो रिसोर्सेज को हम लोग उसको रिकवर नहीं कर पा रहे, हम उसको रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे, हम उसको दोबारा से भर्ती नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग एक जगह पे रुक गए हैं, अपने घरों में बंद है। किसी के घर में प्रॉब्लम चल रहा होगा, किसी के घर में बहुत सारी दिक्कत चलती रहती है, जो हमारे कैपेबिलिटी से बाहर हो जाते हैं उससे, उसके साथ डील करने के लिए। बात यह है कि नॉर्मल है, ठीक है, तो हम लोग को ऐसे गिव अप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस से जाने के लिए आपको बाहर आके आपको बात करनी पड़ेगी उसके बारे में एक दूसरे से डिस्कस करनी पड़ेगी, है ना।
तो मैं एक इजी सा सोल्यूशन बता रही हूँ। सोल्यूशन तो नहीं है, जो आपके लिए शायद आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहे तो हम लोग की लाइफ में जो पहले कोविड-19 के लॉकडाउन से पहले बात थी कि हम लोग रूटीन से चलते थे, सुबह उठते थे, खाना वाना खाते थे, कॉलेज जाते थे, दोस्तों के साथ मिलते थे, टाइम पास करते थे, या फिर क्लासेस अटेंड करते थे। एक रूटीन थी हमारी लाइफ में, वापस आओ, कॉलेज का काम करो, या फिर कहीं जॉब करने जाओ, या फिर पेरेंट्स को हेल्प करो, सिबलिंग्स को हेल्प करो। वो रूटीन नहीं है हमारे लाइफ में। अगर आप लोग एक रूटीन ला सकते हैं अपनी लाइफ में, वो हेल्प करता है। दूसरी बात है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, कम्युनिकेशन। आप अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने रिलेटिव से बात करो, जिसके साथ आपको कंफर्टेबल लगता है बात करने के लिए आप बात करो। लेकिन बात करने का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत से सोल्यूशन कोई दे देगा कि भाई आपको ऐसा लग रहा है तो आप ऐसा करोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब मेंटल हेल्थ है, मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है कि आप सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और आप यू आर डन विद इट। इट्स नॉट लाइक दैट। सो यू हैव टू कीप कम्युनिकेटिंग, यू हैव टू कीप talking. Yeah, I'll answer your question, Priya. I got your question. दूसरी बात है, रूटीन और कम्युनिकेशन के अलावा, कम्युनिकेशन फर्स्ट में आता है, सेकंड है रूटीन, थर्ड है आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करो। आई नो ये बताना बहुत इजी होता है लेकिन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जब फ्यूचर इतना अनसर्टन है, फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये लॉकडाउन कितने दिन तक चलने वाला है, जॉब्स के क्या होंगे, डिग्रीज के क्या होंगे, हम लोग आगे पढ़ाई कर पाएंगे नहीं, हम लोग आगे बाहर जा पाएंगे नहीं, ये सब सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मन में हमारे। बहुत बहुत नॉर्मल है, बहुत वैलिड है ये क्वेश्चन, बहुत जेन्युइन है ये क्वेश्चंस। लेकिन बिकॉज ये क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास नहीं है, कोई नहीं दे सकता ये क्वेश्चंस के आंसर एक्चुअली। मतलब स्वयं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकते इसका ये आंसर का क्वेश्चन। तो हम लोग लेकिन वो जब तक ये सिचुएशन टल ना जाए, हम लोग हमेशा प्लान कर सकते हैं कि ये हम लोग कर सकते हैं। वो प्लानिंग में हम लोग जब एंगेज होते हैं तो वो हेल्प करता है वो स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए। तीसरी बात है, चौथी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जिस टाइम से गुजर रहे हैं वो टाइम हम लोग देख रहे हैं, दोनों एक ह्यूमन वैल्यूज के दो एक्सट्रीम्स देख रहे हैं हम लोग। एक एक्सट्रीम है जब लोग लूट रहे हैं। आपने वो दिल्ली में वो केस पढ़ा होगा, एक आदमी आम बेच रहा था और वो गया था किसी और के साथ बात करने के लिए, और लोगों ने रुक के अपनी गाड़ी को लूट लिया उससे अपने ये आम। तो वहां पे एक एक्सट्रीम देखा आपने। और उसी केस में और एक एक्सट्रीम देखा आपने जब पूरे इंडिया के लोग, देश भर के लोग उसके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए ताकि उसको हेल्प मिले। आप ये दोनों एक्सट्रीम्स देख रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज की। तो ये क्राइसिस टाइम में बहुत नॉर्मल है कि हम लोग एक्सट्रीम्स पे आके बिहेव करें। एज लॉन्ग एज इट इज हेल्दी, इट इज फाइन। तो इट ऑलवेज हेल्प्स जब हम लोग अपने खुद से बड़े किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं या हेल्प करते हैं। आप जरूरी नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स छोटे हैं या आपके प्रॉब्लम्स कोई मायने नहीं रखते हैं। आपके प्रॉब्लम्स बेशक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सीरियस है, आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो वो प्रॉब्लम्स को लेके। लेकिन कभी कभी हेल्प करता है ये कि अपने प्रॉब्लम्स को एक बार साइड में रख के किसी और के प्रॉब्लम्स को देखे या किसी और को हेल्प करे। उस चीज का नाम होता है एम्पैथाइज करना। सिंपैथाइज तो एक बात है, सिंपैथाइज भी कर सकते हैं, लेकिन एम्पैथाइज करना मतलब खुद को वो बंदे की जगह में देख के रख के देखो कि वो बंदा कैसे फील कर रहा होगा, वो इंसान कैसे फील कर रहा होगा, वो इंसान कैसे डील कर रहा है प्रॉब्लम से। तो ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, बहुत सारे आई एम वेरी श्योर कि सारे रिलीजियस बुक्स में भी लिखा गया है कि हम लोग जब अपने से बड़े प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को पीछे रख के, वो हमेशा हमें स्ट्रेंथ देता है और वो बहुत अच्छा फील कराता है कि चलो हमने किसी की हेल्प की। और वो अच्छी वाली फीलिंग ना हमें स्ट्रेंथ देती है वापस रिटर्न में कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कुछ अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात है घर के कामों में हेल्प करना। और ये बात लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि लड़के घर में बैठे रहे
और बहनें सिस्टर्स है या मदर्स है या फिर बेटियां ही सिर्फ काम करे क्योंकि घर का काम उनका होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों को, लड़का हो या लड़की हो, घर के कामों में पूरा हिस्सा लेना चाहिए पूरी तरह से। अपनी मम्मी को हो या अपने पापा को हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हेल्प करो, अपने सिबलिंग्स को हेल्प करो, घर के कामों में एंगेज रहो। अगर अगर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तो घर के काम कुछ करो, गार्डनिंग करो, पेड़ लगाओ, कुछ हॉबी अडॉप्ट करो, कुछ नया एक चीज रखो, दिन में 1 घंटा या 2 घंटे आप बाहर जाके खेलो या फिर बाहर जाके नेचर के साथ कनेक्ट करो। बैठो चुपचाप, नहीं तो कुछ भी नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ। अगर आप लोगों को हर चीज से स्ट्रेस होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फोन बंद करके, लैपटॉप बंद करके, टीवी बंद करके चुपचाप बैठ जाओ। ये फोन और लैपटॉप के भी ये जो एक्स्ट्रा हम लोग को एक्सपोजर मिल रहा है सोशल मीडिया का, वो भी बहुत नेगेटिव होता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स नॉट सो इजी टू कीप कनेक्टेड, कीप इन कनेक्शन ऑल्सो। सबको मन नहीं करता है हमेशा कनेक्टेड रहने का। तो अगर आप फेसबुक से हटना चाहते हो, ट्विटर से, ये टिकटॉक वीडियोस बनाना, ये सब एक सोशल मीडिया एक पॉइंट के बाद एक कंपटीशन हो गया है और सब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते और नहीं करना भी चाहिए और नहीं करना भी नॉर्मल है। तो आप ऐसे दिन में कर सकते हो कि 4 घंटे आप सोशल मीडिया में नहीं रहोगे, बंद कर दोगे, किसी के साथ बात नहीं, बाहर अपने फैमिली को छोड़ के किसी और के साथ बात नहीं करोगे। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हो, बहुत ज्यादा परेशान हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, बहुत सैड फील हो रहा है, लॉस्ट फील हो रहा है कि पता नहीं लाइफ कहाँ जा रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे आगे चल के, आप कुछ देर के लिए रुक सकते हो। स्टॉप मतलब आप बैठ जाओ, थम जाओ। कुछ देर बाद अगर आप रेस्ट करोगे, अपने दिमाग को रेस्ट दोगे, अपने बॉडी को रेस्ट दोगे, तो आप फिर से आपके पास स्ट्रेंथ आएगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक ब्रीफ सा आपको मैं बताना चाहती थी कि ऐसे ऐसे हो सकता है आपके साथ और क्या करना चाहिए आप अगर ऐसा आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं क्वेश्चंस कुछ लूंगी। एक प्रियंका का है क्वेश्चन, स्टूडेंट्स पर ऑनलाइन लर्निंग स्ट्रेस को कैसे कम करे। ये स्टूडेंट है क्या या फैकल्टी है? एनीवे, सो ऑनलाइन स्ट्रेस का प्रॉब्लम, जो स्ट्रेस रहता है ना, वो स्टूडेंट्स पे भी रहता है और टीचर्स पे भी रहता है। मैं बोल देती हूँ आपको, क्योंकि मुझे भी टेंशन हो रहा है कि अगले महीने जुलाई से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, हम लोग कैसे क्लासेस लेंगे, कैसे करेंगे सब। ऑनलाइन स्ट्रेस का आप जब बोल रहे हैं कि ऑनलाइन स्ट्रेस है, किस बात का स्ट्रेस है आपको एग्जैक्टली? आप अगर वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे मुझे, तो मैं आपको शायद आपके प्रॉब्लम को आई कैन परहैप्स एड्रेस इट। While we are waiting for Hello, Priya. Priya, please be unmute. Priya is a student. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रिया, बोलिए। मैम हम लोग को सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लर्निंग प्रॉब्लम। सीखने में मतलब आपको मतलब कैसे ऑपरेट करना है, कैसे सीखना है, लेसन्स कैसे सीखना है, वो उस सब में प्रॉब्लम हो रहा है या आपको कंटेंट में प्रॉब्लम हो रहा है? मैम सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, क्यों, मतलब टेक्निकल रीजंस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है या मतलब आपको अजीब लग रहा है ये, मतलब कैसे ऑनलाइन सीखेंगे, टीचर नहीं है सामने? नो मैम, यस मैम, वो प्रॉब्लम है और मतलब सर में दर्द हो जाता है ये ऑनलाइन क्लास मतलब देखते ही करते ये सब। अच्छा, तो वो तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने घंटे रहना है क्लासेस में, कितने घंटे सुनना है या नहीं सुनना है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये ऑनलाइन लर्निंग का जो सिचुएशन है, ये हम सब के लिए बहुत एक नॉवेल सिचुएशन है। हम लोग सबके लिए एक नया सिचुएशन। हम लोग तो अमेरिका में रहते नहीं है कि जो मतलब हमेशा ऑनलाइन लर्निंग करते हैं वहां पे बच्चे। हमारे लिए भी बहुत नया चीज है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आपको मतलब एक आप ही हो जिसको ऐसा फील हो रहा है, हम सब डील करने की कोशिश करें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है किसी सब्जेक्ट में, आप वो सब्जेक्ट टीचर से बात कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप कुछ इंटरनल अरेंजमेंट कर सकते हैं कि ब्रेक कर करके क्लास ले सकते हैं, वो सब आप अपने टीचर्स के साथ भी बात कर सकते हैं।
बाकी ये ऑनलाइन लर्निंग का जो स्ट्रेस है टीचर्स के लिए भी स्ट्रेसफुल है और स्टूडेंट्स के लिए भी स्ट्रेसफुल है, ये मैं एकदम मानती हूँ। लेकिन हम लोग देखेंगे कि कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग। Good afternoon, ma'am. This is या Shiban. ओके या I need to ask you a question that ओके at what point of view or at what point of time we should believe or we should decide that how we should meet the doctor if we are in stress? What is the signal that indicates that now we should meet a counselor or a psychologist? at any moment of time that you feel that it is going beyond your control, you cannot just it's just beyond your resources now, you can't just handle it. uh, वो टाइम पे आप बात कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहते हैं अपने काउंसलर्स के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ, आपके टीचर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात ये है कि हम लोग सुनते नहीं हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत स्ट्रांग है और हमें कुछ नहीं हो सकता है, हमें कैसे हो Excuse सकता me, है ma'am. इस लाइन में। Excuse Yeah. me, ma'am. Ma'am, Yeah. Shiban sir is our faculty. ओके So, ओके या आई गेट इट, इज फाइन, दैट इज फाइन। नो ये जितना अवेयरनेस बढ़ेगा इसके बारे में सर, उतना ही हम लोग जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हम लोग को हेल्प की जरूरत है, हम लोग को किसी से बात करनी चाहिए, काउंसलर से मिलना चाहिए या फिर साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ये एक अवेयरनेस, अगर उसके बारे में जितना हम लोग सुने या पढ़े, वो अवेयरनेस बढ़ता रहता है और अवेयरनेस बढ़ने से हम लोग आइडेंटिफाई करने में हमें इजी रहता है। आपके मतलब आजकल सारे कॉलेजेस में काउंसलर्स रहते हैं, आई एम श्योर, तो काउंसलर से भी बात करते रहते हैं, मतलब कम्युनिकेट करना चाहिए हमेशा। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा बिहेवियर है जो आप नॉर्मली ऐसे बिहेव नहीं करते हैं, बच्चे हो या एडल्ट्स हो, नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करते, बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक है आपका बिहेवियर, और वो शायद 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से ऐसा ही चल रहा है, रिकवरी नहीं हो पा रहे, मतलब वहां से निकल नहीं पा रहे उस चीज से, वो स्टेटस से, मेंटल स्टेटस से, तो आपको जरूर बात करनी चाहिए। I will take the next question from a student, I guess. Tajinder Kaur. Tajinder Kaur, yeah. Can always being positive and overconfident of ourselves is a characteristic of mental disturbance or stress? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव रहना इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम लोग लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हैं, या फिर हम लोग लाइफ में कोई जितना भी प्रॉब्लम्स होता है हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। पॉजिटिव रहना उसका मतलब बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स रहने के बावजूद हम लोग वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, और हम लोग प्रोएक्टिवली उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव रहना बोलते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है इंसान दुनिया में जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, किसी के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, किसी के बहुत छोटे प्रॉब्लम्स है, लेकिन अपने अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं हम लोग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पॉजिटिव रहने का ये मतलब नहीं कि हमारा लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव रहने का ये मतलब कि हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे कि हम लोग वो प्रॉब्लम से कैसे उभर सकते हैं और दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। Okay, thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Actually, I mean to say that कि मैम जैसे कोई प्रॉब्लम होता है, we identify that problem, but actually we got self confidence in ourselves कि चलो I'll deal with it anyhow. But sometime at one point we get it कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो फिर how to deal with that situation again? You should talk to people whom you can trust, who you think can help you. जैसे आपके कॉलेज के काउंसलर हुए या साइकोलॉजिस्ट हुए या आपके टीचर्स भी हुए। इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में ये भी है कि हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, तो जैसे पेरेंट्स का रहता है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक्सरसाइज करो या फिर खाना खाओ टाइम से तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, या फिर फोन में इतना मत बात करो, मोबाइल से दूर रहो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स गलत बोलते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने पोजीशन से, उनके समझ से वो लोग बोलते हैं, लेकिन होता क्या है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, वो रिलेशनशिप नहीं बन पाता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ हर चीज को फ्रीली डिस्कस करें और फ्रीली बात करें। जैसे आप मतलब आई कैन नॉट इमेजिन टिल डेट एन इंडियन चाइल्ड, इंडियन टीनेजर डिस्कसिंग विद द पेरेंट्स अबाउट देयर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग।
Yes, ma'am. अगर कोशिश भी करेंगे तो घर के बाहर पाए जाएंगे। तो वो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग एक कल्चर में रहते हैं। वो कल्चर से निकल के अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके माँ बाप अचानक से एकदम नए अवतार में आपके साथ बात करें, वो पॉसिबल नहीं है। हमारा सोशलाइजेशन ही ऐसा हुआ है कि हम लोग हम लोग का नजरिया बन गया है, उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, अगर हो तो उनके साथ जरूर बात करनी चाहिए, अगर नहीं हो तो आपको हमेशा अपने एक काउंसलर के साथ बात करनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के साथ, या अपने टीचर्स के साथ भी आप बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात कर सकते हैं। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि इस चीज का क्या इफेक्ट हो सकता है मुझ पे, मुझे किसी से बात करनी चाहिए नहीं चाहिए। और प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग क्यों झिझकते हैं बात करने में। बात करना बहुत इजी होता है, लेकिन हम लोग क्यों झिझकते हैं बात करने में, वो हेजिटेंस क्यों आता है? क्योंकि द मोमेंट वी थिंक कि हमें काउंसलर से या साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, तो हम लोग को लगता है कि यार हम लोग पागल तो नहीं हो गए, साइको तो नहीं हो गए, मेंटल तो नहीं हो गए, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं। और वो बात वो बहुत गलत है। एक साइकोलॉजिस्ट से या एक काउंसलर से हेल्प लेना, इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो गए हैं, ठीक है? मैम एक बात और है, सोशल फियर भी हम लोग यहाँ बहुत होता है। जैसे काउंसलर किसी से बोल देगा, या मेरा फ्रेंड ही कभी किसी से दूसरे से बता देगा मेरी मन की बातें। ये सोशल फियर से हमारे स्टूडेंट्स या टीनेजर्स या बच्चे ऐसे यूथ जो है वो डरते हैं। हाँ, वो बहुत बात है। क्योंकि हमारा बात ये है कि हम लोग हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि शर्मा जी के बेटे क्या बोलेंगे, शर्मा जी क्या बोलेंगे, गुप्ता जी क्या बोलेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, तो हम लोग के कल्चर में ये मान लेते हैं, ये एस्टेब्लिश्ड है कि हम लोग बात करेंगे जब, तो हम लोग अगर खुल के बाहर बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, तो लोग बातें बनाएंगे, लोग ऐसे बोलेंगे। बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू। एंड काउंसलर्स की जब बात आती है, साइकोलॉजिस्ट की बात आती है, सारे काउंसलर जो ट्रेंड प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं, वो दे आर बाउंड बाय सम एथिकल रूल्स। दे कैन नॉट breach the confidentiality that exists between a counselor and a client. तो आप जो कुछ भी बात करते हैं काउंसलर के साथ या साइकोलॉजिस्ट के साथ, वो बाहर नहीं जा सकता है unless and until it's a life and death situation. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं मैम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अनम फातमी को एक बार देखा जाए। Doesn't the pressure of following a particular routine ultimately add to the stress? वही पूछ रहे हैं ना, ultimately add to the कहाँ गए? Stress. अनम फातिमा। Eventually adds to particular तलहा का stress. भी क्वेश्चन देख लीजिए मैम, हो सकता है एक साथ दोनों को कंबाइन करके आप बता सकें। The next question, तलहा। हाँ, अच्छा, हाँ, stopping and resting again leads to stress according to me. How to overcome this? अच्छा, पहले मैं अनम का क्वेश्चन आंसर करती हूँ। Doesn't the pressure of following a particular routine eventually adds to the stress? Of course it does. इसीलिए लोग वेकेशंस पे जाते हैं, इसीलिए लोग बीच बीच में ऑफिस नहीं जाते। आप कॉलेज से बंक मार के बाहर घूमते रहते हो, चाट खाते रहते हो, पानी पूरी खाते रहते हो, ये सब होता है। ये मतलब कोई नई चीज नहीं है इसमें। तो आपका एडवांटेज ये है सिचुएशन में, घर में रहने का, कि आप लैपटॉप भी बंद कर सकते हो। अगर आपको नहीं देखना है, अगर आपको नहीं सुनना है, आपको लेक्चर अटेंड नहीं करना है, तो हमेशा बंक मार सकते हो। एनीवे, जब फिजिकल क्लासेस रहते हैं तो आप तभी बंक मारते हो। Ma'am, I wanted to ask something regarding this. This is Anam. Okay. Good afternoon. Ma'am, what I wanted to ask, that especially during this lockdown, what I have seen that like on social media, we see that especially all our friends are like following a particular type of routine, like working out every day and things, and some are cooking and doing stuff. So there is a kind of a virtual pressure on everyone, like, should I be doing this? Yeah, why am I not doing this? Is something wrong with me? Like, मतलब I have to follow a particular routine. मैं अपने हिसाब से नहीं कर सकती कि कुछ नया करना है, प्रोडक्टिव होना है। यस, वो प्रेशर भी हम टीचर्स पे भी रहता है। डोंट वरी, ऐसा नहीं कि हम पे नहीं रहता है। कुछ पेपर लिखना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया कोर्स सीखना चाहिए, वो सब रहता है। इट्स देयर। बट लेट मी टेल यू समथिंग अनम, दैट वी ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ लॉगिंग आवरसेल्व्स आउट ऑफ सच सिचुएशंस। कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। आपके दोस्त, मतलब I'll tell you as a psychologist myself and as someone who is living alone in Hyderabad, and I have been talking to my students also, the pressure of, and as an academician, the pressure of doing something always productive is so ingrained into our brains कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, करते रहना चाहिए।
मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो कुछ और नहीं तो कुछ और, बिल्कुल नहीं, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपके एट द एंड ऑफ द कोविड-19 जब लॉकडाउन खत्म होगा, कोई आपको प्राइज नहीं देने वाला है कि भाई आपने इतना सब कुछ किया है ये टाइम पे, वाह बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखते हैं या नाजिया परवीन का एक क्वेश्चन है। तलहा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, नाजिया परवीन का एक क्वेश्चन देखिए मैम। empathy, but it's also creates a lot of stress. Yeah, how to overcome from it. Actually, stress होता है अगर, लेकिन आपको ये भी डिसाइड करना है कि at what point do you decide to dissociate or detach yourself from the situation. Empathy नहीं कि आप रोने लगो हमेशा, और आपके या फिर आप दूसरों का दर्द हमेशा महसूस करने लगो, वो नहीं हो सकता है, वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एम्पैथी करो, लेकिन एम्पैथी के चलते अगर आप कुछ कर सकते हो किसी के लिए, आप ट्राई करो, आप कोशिश करो किसी को हेल्प करने के लिए, तो अपने हिसाब से जितना भी बनता है। कोई कंपटीशन नहीं है कि अगर अक्षय कुमार ने 25 करोड़ डोनेट किया है पीएम केयर्स फंड को, तो आपको भी 25,000 या 25 लाख डोनेट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने रिसोर्सेस, अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप किसी को भी हेल्प कर सकते हो, हेल्प करो। चाहे वो आपकी गली की, आपकी लोकेलिटी में एनिमल्स जो है उनको भी हेल्प कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज मैम हाउ टू डील विद पेरेंट्स फियर। इसका इस सवाल का आंसर किसी के पास नहीं है, जवाब दे दिया है मैम। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, सदफ नसीम पर हम लोग चलते हैं। हमेशा लगता है कि हमारी स्टडी हैबिट कम हो गई है, एंड शी इज वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू। इसको स्टडी हैबिट कम कैसे लगने लगी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैम, इसको रिकवर कर दीजिए। इसकी रिकवरी बताइए कैसे हो। या आपका नाम नसीम सदाफ नसीम है ना? हाँ, तो स्टडी हैबिट कम होगी मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? नहीं, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल? हाँ, तो इट्स नॉर्मल, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इट्स नेचुरल। आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जब क्लासेस स्टार्ट होगी या कुछ असाइनमेंट होगा, आप फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पहले 5 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करते थे, 10 घंटे कुछ ज्यादा हो गया शायद, 2 घंटे पढ़ाई करते थे, तो अभी अगर आप 15 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है उसमें। मैम इसके केस में 10 घंटे चलेगा। अच्छा, हर केस 10 आवर्स विल गो। हाँ, तो कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, धीरे धीरे वो आ जाएगा। क्योंकि आप स्ट्रेस्ड है, क्योंकि आप एंग्शियस है इन सब चीजों को लेके, ये आपके बॉडी का या आपके माइंड का नॉर्मल रिएक्शन है। इसमें कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है कि आपका पढ़ाई कम हो जाएगा, मार्क्स कम हो जाएंगे, हो जाएगा, पीछे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई कंपटीशन नहीं है ये। हम लोग सब एक बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और हम लोग अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, और आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। संदीप कुमार का है, आफ्टर कोविड-19 school will open, how can we identify that any student from chronic stress? आपका स्कूल खोलने के बाद एक्चुअली आई थिंक हर स्कूल में, हर क्लास में एक सेशन होना चाहिए जब आपके स्कूल काउंसलर्स हो या कोई साइकोलॉजिस्ट हो आके एड्रेस करे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमेशा एक सेफ स्पेस और एक ओपन स्पेस देना चाहिए स्टूडेंट्स को, जहाँ पे वो आके अपने प्रॉब्लम्स को विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी स्टिग्मा, विदाउट एनी शेम, विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर दैट बात बाहर चली जाएगी, आपको जाके वो स्पेस देना चाहिए स्टूडेंट्स को। कि जैसे जगह जगह पे आप पोस्टर लगा सकते हो कि ये टाइम से ये टाइम तक एक साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल रहेंगी, आप उनसे जाके अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि कॉलेज स्कूल खोलने के बाद, आई नो सब टीचर्स पे प्रेशर रहेगा कि सिलेबस खत्म